Good morning, student. Now we'll study some ionic compounds. Ionic bonds are also formed between magnesium and chloride ions. The atomic number of magnesium is 12. If the atomic number is 12, then its electronic configuration is 282. To attain inert gas configuration 28, it will have to lose 2 electrons, but the chlorine atom needs only 1 electron to complete its octet. तो ये कंप्लीट कैसे होगा? MgCl2, then 2 chlorine atoms are there and 1 magnesium atom is there. Then magnesium atom donate 2 electron, each 1 electron to each chlorine atom. How will the 2 electron lost by magnesium be accommodated? Here 2 chlorine atom will take part in bond formation with 1 magnesium atom. Therefore, each chlorine atom will accept one of the 2 electrons lost by magnesium atom and attain inert gas 288 configuration. The formula of the compound is MgCl2. See here, chlorine 287 and magnesium 282. Now these 2 electrons of magnesium, these 2 electrons, one donated to chlorine and another to again second chlorine atom. In this way, magnesium having 28 outermost orbit 8 electron, chlorine 288, and the compound form is MgCl2. Now look at another ionic compound which is formed by calcium and oxygen. The atomic number of calcium and oxygen are 20 and 8. Now see calcium oxide, the compound form here it is calcium oxide. How it forms? You know the atomic number of calcium is 20, electronic configuration 2882. Now calcium having 2 electrons in valence shell and oxygen having 6 electrons. Oxygen need 2 electrons to complete the octet, and if calcium donate these 2 electrons, then transfer of 2 electrons from calcium to oxygen takes place, and in this way both become stable. Electronic configuration 288 and oxygen 28, but having 2 negative charge here and having 2 positive charge because it donate 2 electrons. 2 electrons are less in calcium and 2 electrons are excess in oxygen, hence oxygen having 2 negative charge and calcium having 2 positive charge. Compound form is calcium oxide. So far we have seen that during bond formation between element, 1 or 2 electrons are lost by one atom and accepted by other atom or atoms. The atomic number of aluminium and chloride are 13 and 17. Aluminium chloride 13 and 17 compound is AlCl3 is formed by the transfer of electron between aluminium and chlorine. एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13. तो 283. एंड क्लोरीन ऑलरेडी नीड 1 इलेक्ट्रॉन, देन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर to this, another to this, and third one to this, and all 3 chlorine atom complete their octet and aluminium become 283. 3 less electron having 3 positive charge and chlorine each having 1 negative charge, and the compound form is AlCl3. In this way, ionic compound aluminium chloride is formed. So the examples seen so far, we know that sodium need to lose 1 electron to form bond and oxygen gain or accept 2 electron. इस तरह से हमें पता चला कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है? लूज, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ एटम बिकम्स 8. What will be the formula of the compound formed by bonding between sodium and oxygen? ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है? सोडियम ऑक्साइड Na2O, because this sodium having 1 excess electron and this sodium having 1 excess electron have electronic configuration 281, here 281. Then they donate 1 electron to oxygen, 1 electron to oxygen, and become positively charged, on oxygen having 2 negative charge, as
इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच सोडियम एटम। इस तरह से ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और इस सोडियम के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। In this way we have studied how ionic compounds are formed. Now see what is valency. We saw many different examples of how atoms of different element lose or accept electron to achieve inert gas configuration. हमने अभी तक देखा कि एटम्स क्या करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, आइदर दे एक्सेप्ट और लूज इलेक्ट्रॉन। किस लिए ये सब करते हैं वो? टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एलिमेंट या हर एटम क्या चाहता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे। Sodium has 1 electron in its valence shell which it loses to achieve inert gas configuration, therefore valency of sodium is 1. सोडियम की यदि बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके पेन अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2882। इसके पास 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 7 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है। और सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है। इससे हमें पता चलता है कि वैलेंसी मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड, जितने इलेक्ट्रॉन एटम डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी। तो इस तरह से वैलेंसी टेल्स अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट और एक्सेप्टेड बाय द एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जितने इलेक्ट्रॉन वो एटम डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी। We find that atoms of some element lose atoms from their valence shell and atoms of some other element gain electron to complete their octet. We have identified metal and non-metal based on their physical property. Now we can say that during ionic bond formation, the element that lose electron are called metal. Generally, metals are donors and non-metals are acceptor. तो हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड में मेटल क्या है। आप इस चीज़ को हमेशा समझिए कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो हमेशा मेटल ही होता है मैक्सिमम टाइम, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होता है नॉन मेटल। द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन 17, 19 एंड 17। पोटेशियम का कितना है? 19 और क्लोरीन का कितना है? 17। राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 19 के लिए कैसे लिखोगे? 2 8 8 1 और 17 के लिए 2 8 7। इन हाउ मेनी वेज कैन द 2 एलिमेंट अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 19 और 17 एटॉमिक नंबर है जिनके पोटेशियम और क्लोरीन के ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेंगे। एंड यू हैव टू राइट लेविस सिंबल फॉर दिस। व्हाट विल बी द चार्जेस? लेविस सिंबल कुछ नहीं होता है, ये देखिए ये जो दिखाया है ना डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज लेविस सिंबल। ये आपका लेविस सिंबल है। व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन इन पोटेशियम क्लोराइड? पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम और क्लोराइड आयन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं? KCl2 का लिख के देखिए तो आप। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन आर 3 and 9। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, फ्लोरीन का 9 है। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज़ करके उनका बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है लिथियम और फ्लोरीन का। आप कोशिश कीजिए, लिथियम के पास कितने हैं? 2 है तो वो 1 ही डोनेट करता है और फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो LiF फॉर्म होगा लिथियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको आप डॉट से क्या करोगे? दिखाओगे कॉपी में। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, अभी हमने बात की। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम? उसकी 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि उसके पेनल्टीमेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द M shell of an element is 7 and its valency is 1. What will be the electronic configuration of the ions of this element? देखिए अब M shell में कितने एलिमेंट
ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। यदि क्लोरीन की हम बात करते हैं तो क्लोरीन के एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। उसकी वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सोडियम से एक्सेप्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन ऑफ दिस एलिमेंट? जो आयन आएगा उसके बाद, मतलब ये जो क्लोरीन आयन फॉर्म होगा Cl नेगेटिव, तो 288 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। Aluminium has 3 electrons in its valence shell which it loses from Al3 positive. That element has 4 electrons in its outermost shell. एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। वो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एज इट इज़ मेटल, लूजेस इलेक्ट्रॉन, बिकम Al3 पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, मैंने आंसर बता दिया है, वो एलिमेंट है आपका कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। क्लियर? अब हमने आयोनिक बॉन्ड तो कंप्लीट किया है। अब हम इस क्वेश्चंस के पहले आंसर लिखेंगे कॉपी में, केमिस्ट्री कॉपी में, और चैप्टर को पढ़ोगे।